سامنے بیان کریں گے. میں صرف 3 باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے آج حاضر ہوا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اخیر کے عشرے میں تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا طریقہ کیا کہ لیلۃ القدر سمجھ کر 5 رات بھی جاگو اور عبادت کرو. جو رات لیلۃ القدر کی رہے گی 5 راتوں میں تو کوئی ایک رات رہے گی, تو پھر آپ 5 رات بھی اگر جاگیں گے تو آپ کو لیلۃ القدر مل جائے گی. اسے ایک مثال دیتا ہوں, سمجھو. شادی ہوتی ٹامی روڈ میں, ارے ہوتی نہیں ہوتی, ہوتی ہے. یہ ہوتی کہتے نہیں تو کیا دوسرے سے بھی چار کر رہی ہیں, پیچھے سے لقمہ مل رہا, یہ ہوتی کہتے. اچھی بات ہے. شادی کرنا جو طریقہ شریعت میں ہے وہ طریقہ خیر. شادی کرتے وقت آج کل بہت سارے رسم و رواج بھی چلتے ہیں. مثال کو میں آپ کو لیلۃ القدر کو ثابت کر رہا ہوں, مثال موٹی دے کر. یہ نہ سمجھنا کہ تاک رات اور لیلۃ القدر میں مولانا ہمارے سامنے بجائے فضیلت بیان کرنے کے شادی کا عنوان انتخاب کیا. میں شادی کا عنوان انتخاب نہیں کر رہا ہوں, مثال آپ کے دماغ میں اتارنا چاہ رہا ہوں. جب مثال کے ساتھ کوئی بات آتی ہے تو وہ بات اتر بھی جاتی ہے اور وہ بات یاد بھی رہ جاتی ہے. اب شادی ہوتی ہے, صبح کو نکاح ہے, تو آج رات آرس نوشوں کے لیے, آرس والے نوشوں والوں کے لیے پوری تہجد کی رات گزرتی. جاگتے تو سب ہے لیکن عبادت تو کوئی نہیں کرتے. 17 قسم کے رسمیں رہتے. ایک رسم سالی دودھ بیچنے کو بھیجتی. سمجھ میں ایک بات, ہمیں بھی بچے تھے, کبھی بھی جاتے تھے, قانون نہیں آئے تھے, ابھی علماء کرام اس پر غور و فکر نہیں کیے تھے حالات پر. بعد میں چکر حضرت علماء کرام جب صاف صاف باتیں, دو ٹوک باتیں شادی کے مسائل پیش کیے تو اس وقت سے ہم بھی جانا چھوڑ دیے. چھوٹی عمر کے تھے, اس عمر کے کبھی کسی شادی کو چلے جاتے تو ان رسموں کو دیکھا ہے, اور بڑے ہونے کے بعد ہم نے بڑوں سے ان رسموں کو سنا ہے. سالی سر میں دودھ کا ایک تمالو لے لے کو, دودھ بیچ لے کو رہتی. شادی محل میں کئی کو بیچتی, نندنی میں جا کر کام کر لینا تھا. اتنا دودھ بیچنے کی خواہش رہی تو دودھ بیچنے کی خواہش رہی, یا تو گئی پالنا یا نہیں تو نندنی ڈیری میں جا کر کام کرنا. شادی میں ہلیج کیا ملیا یہ بے حیا کو. اب وہ 2 لیٹر کا دودھ کا تمالو لے لو, سر میں رکھ لو, ادھر سے ادھر تک پھرتی. سو انہیں پھری تو بھو نہیں خریدنا, سو دوسرے صاحب کی نہیں خرید سکتے. اچھی ایک رسم وہ ہوتا, ایک رسم پان کا ہوتا, اور ایک رسم ہوتا پوری کا. سمجھ میں آئی بات. 4-5 پوریاں رکھتے, نیچے رکھتی دودھ رکھتا. 4-5 پوریا میں سے کوشتی بھی ایک پوری میں ذرا چلر ڈال کو رکھتے. ٹھیک ہے, تو چلر بیٹھ کو چلر اٹھانا نا. انہیں زندگی میں کبھی بندہ بنیاچ نہیں. انہیں چلر نمبر 1. 50 لاکھ روپے لے کر, 50,000 لے کر بھی چلر ہی چنے. 1 لاکھ روپے لے کر بھی چلر, 2 لاکھ روپے لے کر بھی چلر, راڈو واچ لے کر بھی چلر, ایکٹیوا پلسر لے کر بھی چلر. اب 5-6 پوریاں رکھتے, اس میں سے کسی پوری میں 1, 2, 3, 4, 5 روپے کا چلر ڈال کر پوری تلتے. اب وہ کوسی پوری میں ہے معلوم نہیں. اب سامنے جیجا جی ہونے والے کیا پکارتے ہیں آپ کے علاقے میں؟ بھونی پکارتے, بھائی جان پکارتے, انیس بھیا پکارتے, نفیس بھیا پکارتے. بھونے آپ کو کتنے نام ہی دیکھو. سمجھ میں آئی بات. ورنہ اس زمانے میں انہیں جو ہماری آپا کو ستاتا اس کا نام فرعون ہونا تھا, نمرود ہونا تھا, اس کا نام اٹھتا ستاتا. گزشتہ سال ایک نوجوان مجھے پوچھ رہا ہے, حضرت عید ہو کو دوسرے دن جورو کو بلا لے کو ساس کے گھر کو جانا ضروری کیا با؟ نہیں رے بابا, میسور قبرستان کو جانا کیا. عید ہو تو دوسرے دن, عید ہو تو دوسرے دن
जोरू को बुलाने को सास के घर को जाना जरूरी, क्या पूछ रहा है? की वाइसा पूछ रहा है? हमारे बेगम हर साल मुझे जबरदस्ती करती है, हजरत खुतबा होगा, बासी खुतबा को अम्मा के पास जाकर मिल कहेंगे, बोलो शादी होगी तो उन्हें हमारी इतनी क्या हजरत, उसे कहीं को हजरत बुलाने को जाना नहीं। बोलिया तू बेवारसी को शादी करे कि वारिसदार को शादी करे बा, ऐसा भी सताते क्या जोरुआ को? ईद हमारे घर में थी, अब्बासी खुतबा है जो हमारे यहाँ बोलते, हमारे घर की बेटियां हमारे घर को आते, हमारे घर की भवा उनके घर को जाते, ताकि ईद की खुशी में मुलाकात करके आए। कितना सताते देखो मुआशरा। मैं यही किसी जगह पर अर्ज किया था कि एक जमाने में लड़की पैदा होती थी, मुशरिकीन मक्का और काफिरीन मक्का और काफिरीन अरब और मुशरिकीन अरब अपनी बेटियों को जिंदा इसलिए दफनाते थे कि कहीं ये बेटी बड़ी होकर हमारी इज्जत को दाग न लगाए। आज भी बेटी पैदा होती है तो हमारे पेट में दर्द इसलिए होता है कि कहीं ये बेटी बड़ी होने के बाद इसका शौहर इसे न दफनाए, इसलिए डर होता है। अच्छा सलूक करो अपनी बीवियों के साथ, बेहतरीन सलूक करो। आपको आपके सास के घर में कितने अच्छे नामों से पुकारा जा रहा है। आपके साले और सालियां आपको भाई जान, खाली भाई नहीं बोल रही, क्या बोल रही? भाई जान। कितना अच्छा नाम आपको दिया, बहन भाई, बहन का वाला। अब जरा मॉडल्स नाम आ गए, अनीस भैया। अनीस किसे बोलते हैं? दोस्त को। इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं, भोनी से बड़ा कोई दुश्मन है? नफीस भैया। नफीस किसे बोलते हैं? पाक को। इससे बड़ा कोई गलीज है? अब ये 4 नामा चले गए, 5वां नाम आया है क्या? जी जाजी। क्या भी माना इसका बेटा उधर से मंदिर थोड़ा बहुत धूना देख रही हूं, मंदिर देखने के वास्ते आया सो मजमा। तुम्हें हाथा भी पावा आना तो ये मजमा बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में आता। सो समझ में आई बात? तो अर्ज कर रहा था जी जाजी। मंदिर भी समझ में नहीं आया ये जी जाजी का माना क्या, मतलब क्या, कहां से निकलिया ये नाम? कोसी डिक्शनरी में है, उर्दू में है कि संस्कृत जुबान में है कि हिंदी में है कि फारसी में है कि अरबी में तो रह नहीं सकता, अंग्रेजी में तो नहीं रह सकता। बहुत कोशिश करे ये जी जाजी का तर्जुमा क्या, माना क्या, कहीं भी नहीं मिला। बाद में अल्लाह ताला ज़हन में एक बात डालिया, असल में ये शॉर्ट फॉर्म है। ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म बोले तो बहन भाई को गुस्सा आ जाता। इसके वास्ते पूरे घर वाले एक जुमले को छोटा बनाकर पेश करते हैं। असल में जीजा जी क्या है? अजी जाओ जी। क्या है वो? अजी जाओ जी का तो बेगैरत अंदर आता है। कितने अच्छे नामों से पुकारा जा रहा है, कितना अच्छा सलूक करना है। मेरे हाल जीजा जी अभी बने नहीं, बैठे हैं वहां पर। यहां अभी साली बनी नहीं, बैठी है यहां पर। दोनों के बीच में एक कट्टा, एक प्लेट है। प्लेट के अंदर 5-6 पूरियां हैं। नहीं मालूम कि किस पूरी के अंदर चिल्लर है, लेकिन साली के हाथ में लकड़ियां हैं। लकड़ियों को फूल लगाया गया है। अब यहाँ शहिंशाह आलम, समझ में आई बात? बहादुर बेदुम, समझ में आई बात है? कुत्ता हो गया तो 3 दिन बुखार, साली के सामने जवामर्दी, समझ में आई बात है? साली के सामने जवामर्दी। अब इन्हों क्या करना? सामने रहने वाले पूरियों को फोड़कर चिल्लर उठाना। जितने कम मारा खा को भोले उठाता कि उतना बड़ा बहादुर। मैदान में जिहाद में उतरने की ताकत नहीं, मस्जिद में आने की ताकत नहीं। ताकत दिखाता है तो औरतों के सामने ताकत दिखाता है।
दिखाना है तो ताकत उनके सामने दिखाओ जो हमारी मस्जिदों के दुश्मन हैं, दिखाना है तो ताकत उनके सामने दिखाओ जो हमारे मदरसों के दुश्मन हैं, दिखाना है तो ताकत उनके सामने दिखाओ जो हमारे कुरान पर पैर रख कर खड़ रहे हैं आज भी, दिखाना है तो ताकत उनके सामने दिखाओ जो हमारी माँ और बहन और बीवियों और बच्चियों की इज्जत के दुश्मन पड़ चुके हैं, दिखाना है तो ताकत उनके सामने दिखाओ जो खुले आम अल्लाह के खिलाफ आवाज उठाते हैं, रसूलुल्लाह के शान में गुस्ताखियां करते हैं, दिखाना है तो ताकत उनके सामने दिखाओ जो मस्जिदों की अजानों को बंद करने की नापाक कोशिशें करते हैं, दिखाना है तो ताकत उनके सामने दिखाओ जो मुल्क के अंदर जबरदस्ती योगा को लागू करना चाहते हैं, दिखाना है तो ताकत उनके सामने दिखाओ जो वंदे मातरम का नारा हमारे बच्चों से पढ़वाना चाहते हैं, दिखाना है तो नारा उनके सामने दिखाओ, ताकत दिखाना है तो उनके सामने दिखाओ जो खाने के लायक जानवर खुदा ने पैदा किया उसके गोश्त को बंद करने की नापाक कोशिश करते हो। ये औरतों के पास ताकत दिखाने वाला औरतों के निगाहों में तो मर्द हो सकता है लेकिन शरीयत की निगाहों में मर्द नहीं, ना मर्द होता। ताकत की सख्त जरूरत है, सलीके के साथ, तरीके के साथ। हम दिखाते हैं वहां पर ताकत। उस्ताद का मार तो खाने की सआदत नहीं मिली, हजरत का मार खाने की सआदत नहीं मिली। नूरानी कायदा यस्सुन्नल कुरान 40 हदीस और दीनियात में बैठकर अब मार खाने की इसे सआदत मिल रही है तो साली का मार खा रहा है, कितना बेशर्म है। अब एक एक पूरी फोड़ रहा है, डरते डरते फट कर बोल कर जा रहा है हाथ, उन्हें लकड़ी उठा तो वो भी लकड़ी को फूला पीना को मार रही है। वही नौशाद छोटा था, मदरसे के अंदर आता था, सबक याद नहीं था, उस्ताद मोहतरम उसे सबक याद न होने की वजह से या सबक में अटकी आने की वजह से लकड़ी उठाकर मारते थे तो बच्चे को दर्द कम होता था। माँ अस्तीन चढ़ाकर उस्ताद से मुकाबला करने के लिए आ जाती थी, वो भी लंबे रागा घसीट कर, काजी ही हजरत वो औरत की आवाज सुनते कि नहीं कि हजरत मुसल्ला तोड़ को भागने की फिक्र करते की तो मर्द बना से मुकाबला कर सकते, औरता से कर सकते क्या? मर्द बना को अस्तीन चढ़ाना पड़ता, औरता को अस्तीना नहीं रखते। अब बताओ कौन बहादुर? पहले से नहीं है ना तनवीर, अस्तीना इतने इतने अस्तीना रख लेते उन लगा। अब उनको अस्तीन चढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, मौका नहीं है। अब वो आते हैं लंबे, मेरे हुजूर मेरे बच्चे को मारे, मोहब्बत से पड़ा होगा तो मार को पड़ाते क्या? खड़ा उन्नू आम दो, इन्हें आकर डराती नहीं से इनके उन्नू से अलग डराती। बचपन में उस्ताद मारे तो बर्दाश्त नहीं हुआ, अब बड़े होकर वही नौशा बन रहे हैं, पूरा मजमा बैठा हुआ है, नौशा वाले भी बैठे हुए हैं, दुल्हन वाले भी बैठे हुए हैं। अब ये साली के हाथ से मारा खा रहा है, सबके चेहरे गुलाब के फूल बन रहे हैं। बाबा भी देखकर खुश हो रहा है, देखिए मेरा बेटा कितना बहादुर है, एक पट्टी के हाथ से मार खा रहा है। कितना बहादुर है मेरा बेटा लाल, पट्टी के हाथ से मारा खा रहा है। अम्मा भी खुश, बाबा अम्मा को बोलता तेरा दूध चीज हुआ गया, आज कामयाब हुआ तेरा दूध। तेरा दूध पीने वाला छोकरियों के मार नहीं खाया तो क्या मैदान जिहाद की तलवार खाएगा? रोको इन रस्मों को, रिवाज को रोको, खत्म करो इन बातों को। गर्ज ये पूरी तोड़े 10 मार खाए, 2 पूरी तोड़े 10 मार खाए, आखिर में बाजू बैठे रहता है एक चमचा, नौशों के साथ चमचे टीस्पून कब गिरा ज्यादा रहते हैं। वो लगा नौशों के आजू बाजू इसलिए फिरती के पठे तेरी टिकट तो कंफर्म होगी, हमारा वेटिंग लिस्ट में है, कंफर्म करने आया हूं। तू तो कंफर्म में है बाप भरते, हमारा कोई टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। तेरे सत्ते में शादी महल में कहीं कंफर्मेशन मिल गया तो बहुत अच्छा है। नौशो भी जरा संभल को रखता, नौशो के अतराफ अकनाफ के जो रहते ना बड़े उड़ते वो लगा, भूत उड़ते परा में तो भी। अब उसमें से कौन सा तभी एक नौजवान बोलता, क्या रे एक एक पूरी फोड़ रहा सो, मार रे पट्टे एक पंजा, 5 के 5 भी फुटना, पूरे चिल्लर तेरे जेब में आना।
जर्रा जाग डाल कर चढ़ाते की नेकी, उन्हें एकदम पैसों को तलाश करने के लिए एक एक पूरी फोड़ता नहीं बल्कि 5 पूरियों को भी फोड़ता है और वो पैसों को निकालता है, इसलिए कि पता नहीं है ना कि किस पूरी के अंदर पैसा है। वैसे ही अल्लाह ताला ने इस राज को राज रख दिया, इस रात को राज में रख दिया। पता नहीं कि ये रात 21वीं है या 23वीं है या 25वीं है या 27वीं है या 29वीं है। अल्लाह के रसूल भी अपनी उम्मत से कहा कि मेरे प्यारों, एक एक रात जाग कर क्या लैलतुल कद्र का फैसला करते हो? 5 रात भी जागो और इबादत करो। जो रात लैलतुल कद्र की होगी इंशाअल्लाह ताला वो रात तुमको जरूर मिल जाएगी। नतीजा यहां नजर नहीं आएगा, नतीजा वहां नजर आएगा, मिल जाएगी। अब इस रात करना क्या है? पहला काम जागना। गौर से सुनो, आपका ब्रेन वॉश कर रहा हूं, उठने वाले सवालात और एतराजात का डंके की चोट में जवाब दे रहा हूं। मुझे कोई फायदा नहीं है कि मैं पूरी रात आपके सामने बयान करूं, मुझे कोई फायदा नहीं है, मुझे भी कुछ काम करना है और इबादत करना है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इस रात आपको करना क्या है? 3 काम करना है। पहला काम, रात को आप जागना है। जागे बगैर तो इस रात को हासिल नहीं कर सकते, जागे बगैर तो इस रात के फयूज़ और बरकत को हासिल नहीं कर सकते, जागे बगैर तो इस रात के रहमतों और बरकतों को हासिल नहीं कर सकते। पहला काम इस रात को आपका क्या? कि जागना है। दूसरा काम आपका क्या? कि इस रात को जाग कर आपको इबादत करना है। अब सवाल यही आकर अटका, थोड़ा छोटा मोटा इख्तलाफ यही आ गया कि इबादत का मतलब क्या है। जो लोग ये कहते हैं कि इबादत का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना है, उन्होंने अपने इल्म को मुकम्मल नहीं किया। जो लोग सिर्फ ये कहते हैं कि इबादत का मतलब कुरान पढ़ना है, उन्होंने अपने इल्म को मुकम्मल नहीं किया। इबादत एक ऐसा लफ्ज है जिसके अंदर हर अच्छा काम दाखिल हो जाता है।